Hi, today we are going to discuss the bubble sort. This is the one of the first basic sorting algorithm we can say that. So here we'll start our sorting concepts from the bubble sort itself. So let's begin with the sorting concept first. What is sorting? In sorting, we will have the few unordered elements. Unordered means in the sense of their sequence of arrival इट्स डिपेंड ऑन कि उनका कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, कुछ भी अनऑर्डर्ड मैनर पे सीक्वेंस हो सकता है. इट मे बी पॉसिबल हियर यू कैन सी 77 comes first, then afterwards we have received the input 42, then we got the input 35, 12, 1. So here you can see एलिमेंट्स का जो अराइवल है वो किसी प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर पे नहीं है, वो अनऑर्डर्ड वे पे है. What we need to do, we have to arrange all these elements in a proper ordered manner, either in ascending order or in descending order. So here where we can first find out the which one is the smallest element, so that will come first here. Then later on the second largest element, that is 12, will come here. Then 35, 42, 77, and 101. So here we can see what we have done. We arranged all unordered element or unsorted element in a sorted manner or in ordered manner. This procedure is known as the sorting, through which we convert this unordered element into the ordered manner. Fine. So here, as we are going through with the bubble sort, so bubble normally जो पानी में bubbles उठते हैं वो छोटे bubble से लेकर उठते हैं और वो धीरे धीरे larger होते जाते हैं. तो जब surface पे आते हैं bubbles, तो surface पे आने के बाद में उनका जो size होता है largest one हो जाता है. तो इसी प्रकार से यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है बबल सॉर्टिंग में भी. सो बबलिंग सॉर्टिंग में बबलिंग अप प्रोसीजर में हम जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है उसको सबसे लास्ट में हमारे पास में जो प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर ऑर्डर्ड वे पे हमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट मिलता है. So let's see how it happens. तो ट्रेवर्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कई सारा, अब जैसे कि हमारे पास में ये एक लार्जर एलिमेंट है, इट कैन हैव द एरे साइज कैन हैव द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एलिमेंट्स. सो हमारे पास में कलेक्शन होगा एलिमेंट्स का, and we have to move from the front to end. So we'll start from the 77th, and it means first position, and we'll go into the last direction. And after bubbling what will happen, the largest value will be at the end. तो जो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, पहली प्रोसीजर के बाद में जब हम ऐसा करते चलेंगे कि फ्रॉम बिगनिंग से लास्ट तक हम जाएंगे, तो हमारा उद्देश्य यहाँ होगा कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में आ जाए. इसके लिए हम पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं और पेयर वाइज कंपैरिजन में फिर स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. पेयर वाइज कंपैरिजन कैसे, कि जैसे कि 77 और 42 को आपस में कंपेयर किया जाए, ऐसे ही 42 और 35 को कंपेयर किया जाए, 35 एंड 12 को कंपेयर करें. और इसमें स्वैपिंग तब पॉसिबल होती है कि चूंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा लास्ट में हो. तो अगर इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट हो उसको हम राइट साइड की ओर मूव कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ 77 को हम 42 से कंपेयर करें तो 42 यहाँ आ जाएगा और 77 लार्जर होने की वजह से राइट साइड में स्वैप्ड हो जाएगा. मोर ब्रीफली एग्जांपल लेके अपन इसको समझ रहा है कि जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले कंपेयर किया 77 को 42 से, and here we can see that 77 is a larger element in compared to 42, so that's where the swapping operation will be performed, and finally 42 will come here and 77 will come here. Now अब जो अगला कंपैरिजन है वो 77 और 35 के बीच में होगा. तो हियर वंस अगेन वंस विल कंपेयर वी कैन सी दैट द 77 इज अ लार्जर एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट विल कम इन अ राइट डायरेक्शन. तो इन दोनों के बीच में हम स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे और 35 will come here and 77 will come in a righter position. Next 77 will be compared with this 12, and once will this 77 will compare with this 12. So 12 definitely will come here and the 77 will come here. Now we'll compare this 77 with 101. So no swapping will be there because 77 is lesser value in compared to 101. And next 101 will compare with the 5. And finally we can see that कि जो 5 है चूंकि छोटा एलिमेंट है तो इस वजह से 101 उस पोजीशन पे आ जाएगा. और अब आप देखते हो कि सबसे लास्ट पोजीशन पे हमारे पास में
जो इस एरे का जो मतलब इन जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थे उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था दैट वाज 101, वो अपने करेक्ट प्लेस पे आ चुका है। इस प्रकार से अगर हम इसकी एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करें तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट n माइनस 1 कंपैरिजंस कर रहे हैं। यानी अगर हमारे पास में 6 एलिमेंट थे तो हमने कितने कंपैरिजन किए। तो अगर मैं कब बताऊं अब, तो पहला कंपैरिजन हुआ इन दोनों के बीच में, दूसरा कंपैरिजन हुआ इन दोनों के बीच में, तीसरा कंपैरिजन हुआ इन दोनों के बीच में, चौथा कंपैरिजन हुआ इन दोनों के बीच में और पांचवा कंपैरिजन हुआ इन दो लास्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट के बीच में। तो 6 एलिमेंट थे और कंपैरिजन हुए हमारे पास में 5। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और कब तक कंपेयर करेंगे, n माइनस 1 तक, यानी कि 5 कंपैरिजंस होने हैं। और ईच एंड एवरी टाइम जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस है वो रिड्यूस भी होते जाएंगे। एक लूप स्टार्ट होगा, इस लूप के अंदर यानी कि लूप का काम ये होगा कि हर एक एलिमेंट को हमें आपस में कंपेयर करना है और एग्जिट तब करना है जब हमारा इंडेक्स ग्रेटर देन हो जाए लास्ट से। तो एक्चुअल में होना क्या है कि ये सिचुएशन कब अराइज होगी, अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, ये सपोज दैट हमारे पास में एक एरे है, सॉरी, एंड वी आर हियर, इंडेक्स हमारा यहाँ है और हमने जो लास्ट कंपैरिजन है यानी एक तरह से जे को जो ले लिया है यहाँ है। तो हम तभी तक ये जो कंपैरिजन है, जो एलिमेंट्स हैं, तभी तक आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि आई हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, जे हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि जे क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हर बार हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में प्लेस होता जा रहा है। तो इसी तरीके से अगला जो कंपैरिजन होगा यहाँ तक होगा, फिर हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे प्रॉपर प्लेस पे आ जाएगा, फिर कंपैरिजन यहाँ होगा। उसी प्रकार से हम जो भी कंपैरिजन करते हैं वो प्राइमर यानी फर्स्ट पोजीशन से करते हैं। तो क्या होगा, आई हमारा राइट डायरेक्शन में मूव आउट होगा, एफ हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव आउट होगा और एक समय ऐसा आएगा जब जे हमारा इसको क्रॉस कर जाएगा और आई क्रॉस कर जाएगा आपस में। तो जब जे और आई क्रॉस कर जाएंगे, इट मींस जब इंडेक्स विल नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू लेस देन लास्ट कंपेयर एट, तो इट मींस अब कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि अगर इस पोजीशन का एलिमेंट, इस पोजीशन के यानी इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट यानी फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट अगर इंडेक्स प्लस 1 सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से बड़ा है, इट मीन्स अगर ये पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, स्वैपिंग कर देनी है दोनों के बीच में। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें नहीं करना है ये टास्क। और ईच एंड एवरी टाइम हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये इंडेक्स की वैल्यू इस लूप के अंदर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंपैरिजन आगे बढ़ता जाएगा और फाइनली पहला पास जब कंप्लीट होगा तो जो लार्जर एलिमेंट होगा सबसे लास्ट में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि एक चीज जरूर है कि यहाँ जो स्वैपिंग है वो इनबिल्ट प्रोसीजर नहीं होती है, उसका कोड हमें लिखना पड़ता है। तो स्वैपिंग के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम नॉर्मली यूज करते हैं कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं। तो जो पहली वैल्यू है उसको हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर की, पहली वैल्यू पे हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल पे हमने जो टेम्परेरी में स्टोर की थी वो वैल्यू को वहां पे स्टोर कर दिया। एक नॉर्मल प्रोसीजर जो हमने स्वैपिंग में परफॉर्म की होगी बेसिक ऑपरेशन के दौरान। और फाइनली हम इस प्रोसीजर को एंड कर देंगे। तो हमने देखा कि फाइनली हमारे पास में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो सबसे लास्ट में आ गया, करेक्ट प्लेस पे आ गया। लेकिन अभी भी जो बाकी की वैल्यूज हैं वो अभी भी आउट ऑफ ऑर्डर हैं, केवल और केवल जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपने प्रॉपर प्लेस पे आया है। तो अब ये जो बाकी की बची वैल्यू हैं जो अभी भी अनऑर्डर्ड हैं, इनको प्रॉपर ऑर्डर पे लाने के लिए हमको इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। और अगली बार जब हम फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 77 वो इस प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम हर एलिमेंट के लिए हमको इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। तो अगर हमारे पास में n एलिमेंट है, then if each element we develop an element we place it into the correct location। हमारे पास में टोटल n एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के लिए हमको इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। तो हमको ये प्रोसीजर n माइनस 1 टाइम्स को रिपीट करनी पड़ेगी। फाइन। एंड दिस गारंटीड कि जब हम इतने टाइम इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर लेंगे, n माइनस 1 मीन्स व्हाट, कि अगर हमारे पास में 6 एलिमेंट है तो 5 कंपैरिजन किए, इट मीन्स हमें 5 टाइम इस सेम प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा। तो हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग द 5 टाइम द सेम ऑपरेशन we will have all the n number of element in a proper sorted order or sorted manner।
लेट्स हैव द एग्जांपल सी हमारे पास में ये एक एरे है जिसमें अभी अभी हमने 101 को हमने सॉर्ट किया, उसके प्रॉपर प्लेस पे लेकर आए 6th पोजीशन पे। नेक्स्ट टाइम जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे तो 77 उसके प्रॉपर प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे तो 42 उसके प्रॉपर प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे तो 35 उसके प्रॉपर प्लेस पे आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम परफॉर्म करेंगे इस टास्क को तो 12 अपने प्रॉपर प्लेस पे आ जाएगा। और चूंकि अब हमारे पास में जो लास्ट एलिमेंट बचा हुआ वो ऑलरेडी अपने प्रॉपर प्लेस पे होगा ही होगा, इसीलिए हमको ये जो कंपैरिजन है ऑल 6 टाइम न करके 5 टाइम ही करनी पड़ती है। तो जब हमने इसको 5 टाइम परफॉर्म किया, जैसे कितनी फर्स्ट टाइम इसके लिए, देन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड 5 टाइम, देन फाइनली ऑल द एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज हियर? 6 एलिमेंट वाज हियर। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ comparisons we have done? n minus sorry, not comparison, how many number of means times we repeat this process? So n minus 1 times we repeat this process, and finally all the elements are in sorted position. व्हाट हैपनिंग हियर कि पहली बार में हमारे पास में टोटल 6 एलिमेंट थे, अगली बार में हमारे पास में एक एलिमेंट कम हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके बाद में एक एलिमेंट फिर कम हो गया था कंपैरिजन करने के लिए, उसके बाद फिर एक एलिमेंट कंपेयर करने के लिए कम हुआ। इस तरीके से ईच एंड एवरी टाइम व्हाट हैपनिंग कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कंपैरिजन के लिए वो रिड्यूस भी होते जा रहे हैं, है ना? पहली बार में हमारे पास 6 थे, देन 5 एलिमेंट बचे, देन 4 एलिमेंट बचे, तो ईच एंड एवरी टाइम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी रिड्यूस। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अगर हमको nth नंबर का हम बबल अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको मैक्सिमम माइनस एन, मैक्स इज नथिंग बट द साइज ऑफ द एरे, माइनस एन इट मींस हम किस नंबर वाला हम बबल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या हम इसको पासवर्ड भी यूज करते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ passes we require to sort the sixth element, we required at least actually 5 passes, fine। तो ये जो n है इसको आप पास भी समझ सकते हो, पास मीन्स कि आप पे कितनी बार हमको ये जो ऑपरेशन है यू नो वो परफॉर्म करना पड़ेगा, तो 5 टाइम हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेगा, इट मीन्स 5 पासेस वी हैव टू परफॉर्म। तो जो एरे की साइज है मैक्सिमम साइज है माइनस उसमें हम कौन से नंबर का पास ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने कंपैरिजंस परफॉर्म होंगे। तो लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, इट मीन्स कौन से नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे? अब चौथे नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, फोर्थ बबल अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। साइज यहाँ मैक्सिमम कितनी है? 6 है। तो हमने जब मैक्सिमम साइज में 4 को माइनस कर दिया तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सो 9 अब जितने भी एलिमेंट्स बचे होंगे उसमें हमको दो कंपैरिजंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला कंपैरिजन होगा 12 और 35 के बीच में, और दूसरा कंपैरिजन होगा 35 और 5 के बीच में। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पास में कितने कंपैरिजंस की आवश्यकता पड़ेगी। फाइनली इफ विल कंबाइन बोथ ऑफ देम, अगर हम स्वैपिंग को और जो मेन लॉजिक है उसको कंबाइन कर देते हैं तो आप यहाँ समझिएगा हमारे पास में दो वेरिएबल है, एक तो टू डू ये वही है कि कब तक हमें कंपैरिजन करना है, एंड इंडेक्स जिसको हम इनिशियली 1 पे सेट करते हैं, और टू डू जो वेरिएबल है उसको हमने n-1 पे सेट किया। पहला आउटर लूप है, ये पहला आउटर लूप तब तक चलेगा कि इसका ऑल द एलिमेंट्स के लिए हमको ये टास्क परफॉर्म करना है। एग्जिट कर देना है कि अगर हमारा जो टू डू लिस्ट है अगर वो जीरो है, इट मीन्स कोई एलिमेंट ही नहीं अवेलेबल है, तो हम वहीं से एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज इंडेक्स को 1 पे सेट किया, एक लूप लगाया, लूप के अंदर हम आते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि अगर हमारी जो इंडेक्स की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है टू डू से, तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी कि दोनों पॉइंटर्स जो हैं आपस में क्रॉस कर चुके हैं, इट मीन्स हमारा जो एरे है वो पूरा का पूरा एरे स्कैन हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कंपेयर करना है कि एरे ऑफ इंडेक्स पोजीशन का जो एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर देन है एरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1 पोजीशन से, तो दोनों एलिमेंट की हम स्वैपिंग कर देंगे, फाइन। और हम इंडेक्स को 1 पोजीशन आगे बढ़ा देंगे। इसी तरीके से ये प्रोसीजर तब तक चलती रहेगी इस लूप के अंदर जब तक कि पहला पास कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ये जो इनर लूप है वो पासेस के लिए है, यानी एक सिंगल पास के लिए, एक सिंगल पास के सारे कंपैरिजन ऑपरेशन के लिए, और आउटर लूप है कि जैसे कि टोटल 6 एलिमेंट थे, हमको 5 पासेस परफॉर्म करने थे, तो 5 टाइम ये आउटर लूप चलेगा, और इनर लूप चलेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपैरिजंस वी नीड एक्चुअली इसके लिए। ईच एंड एवरी टाइम इंडेक्स को बढ़ा देंगे और इस तरीके से सारे के सारे कंपैरिजन होते चलेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इंडेक्स और
ये टू डू आपस में क्रॉस कर जाएंगे। इट मीन्स बार बार इंडेक्स आगे बढ़ रहा है और ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इंडेक्स क्रॉस कर जाएगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल को। इट मीन्स क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स स्कैन कर चुके हैं। और जब सारे एलिमेंट्स आपस में कंपेयर हो चुके हों, इट मीन्स पहला पास कंप्लीट हो चुका होगा, तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा सबसे लास्ट पोजीशन पे होगा। इसके बाद में फिर अब जो कंपैरिजन है अगला, वो मीन्स पहले पोजीशन के एलिमेंट से एक लास्ट में जो एक एलिमेंट है वो कम हो चुका होगा। यानी नॉर्मली जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं, हमारे पास में ये एरे है और पहला जब हम कंपेयर करते करते जब एलिमेंट पहुंचते हैं तो सबसे लास्ट में हमारे पास में एक एलिमेंट सॉर्टेड आ जाता है, फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड आ जाता है। इस तरीके से ईच एंड एवरी टाइम ये हमारी जो टू डू वेरिएबल है ये भी डिक्रीमेंट होता जाएगा और फाइनली जब ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी तो ऑल द एलिमेंट्स विल हैव बीन सॉर्टेड